خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت سندھ میں امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ سندھ پولیس کی تنخواہوں اور مراعات میں فوری اضافے کا حکم جاری کیا گیا۔ کراچی کی سیف سٹی منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ آپ کو بتائیں اس حوالے سے یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت سندھ میں امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس ہے۔ اجلاس میں سندھ پولیس کی تنخواہوں اور مراعات میں فوری اضافے کا حکم دیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، امداد بزدار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت سکھر میں اہم ترین اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ، اس کے علاوہ وزیر داخلہ اور محسن نقوی کے علاوہ ڈی جی رینجر سمیت دیگر خفیہ اداروں کے افسران، پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران نے شرکت کی اور یہاں بریفنگ دی گئی کچے کے علاقے میں، جہاں پر کشمور، کندکوٹ، گھوٹکی، شکارپور اور سکھر کے درمیانی علاقوں میں جو ڈاکو ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ وہاں پر جو موجود لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، جو ان کی زندگیوں کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے اقدامات کی یہاں پر زیر غور کیا گیا، اور خاص طور پر صدر آصف علی زرداری نے ہدایت دی ہے کہ فوری طور پر پولیس کو مطلوبہ سہولیات فراہم کی جائیں، جس میں جدید اسلحہ شامل ہے، تاکہ وہ ڈاکو جو کہ قانون کو چیلنج کر رہے ہیں، قانون کی بالادستی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے خلاف کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے، امن امان کی صورتحال کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو مراعات دینے کے حوالے سے بھی اقدامات کی حکم جاری کیے گئے ہیں، اور کراچی میں سیف سٹی جو کیمرہ منصوبہ ہے اس کو بھی مکمل تکمیل پر پہنچانے کے حوالے سے یہاں پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ صدر مملکت کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح پولیس رینجرز کے اہلکار یہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں امن امان کی بحالی کے لیے، ان کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں مزید سندھ حکومت جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ امن امان جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی وسائل درکار ہوں گے وہ سندھ حکومت دے گی، اور وہاں پر موجود جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں جنہیں یرغمال بنایا جاتا ہے، جو کرمنل لوگ ہیں، ان کے حوالے سے کرمنل لوگوں کا خاتمہ یقینی بنا کر ان لوگوں کو سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ جی بتائیے گا، سیف سٹی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کب تک پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا؟ جی بالکل، اس اجلاس میں جہاں پر امن امان کے حوالے سے دیگر اہم فیصلے کیے گئے، وہیں پر وزیر داخلہ محسن نقوی بھی چونکہ موجود تھے اس بریفنگ میں، انہوں نے بھی کراچی کے حوالے سے جو اہم فیصلہ تھا سیف سٹی کیمرہ کے حوالے سے، اس کی جو تفصیلات تھی ان سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس منصوبے کو فوری طور پر مکمل کیا جائے، کیونکہ میگا سٹی ہے کراچی، اور امن امان کے حوالے سے کسی صورت میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جہاں جہاں جتنے وسائل درکار ہوں گے سندھ حکومت یہاں پر وہ وسائل بروکار لائے گی۔ جی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، یہاں پر اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کے زیر صدارت سندھ میں امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے۔ اچھا امداد، آپ یہ بھی بتائیے گا جیسے کہ اجلاس میں سندھ پولیس کی تنخواہوں اور مراعات میں فوری اضافے کا حکم جاری کیا گیا ہے، تو کتنا اضافہ کیا جائے گا تنخواہوں میں؟ جی پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں، جو اہلکاران ہیں، ان کی جانب سے یہ مختلف اوقات میں مطالبات آ رہے تھے کہ سندھ پولیس کی جو مراعات ہے وہ پنجاب پولیس کی برابر کی جائیں، تو اس حوالے سے پنجاب میں یہ انتظامات کیے جا رہے تھے۔ اب اس مرتبہ جو فیصلہ ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے سامنے آیا تھا، تو انہوں نے بھی اپنی سفارشات یہاں پر مرتب کی تھی، جس کے بعد باضابطہ طور پر یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ سندھ پولیس کے جو تنخواہ ہیں، جو مراعات ہیں، وہ پنجاب پولیس کے برابر کی جائیں، اور اب سے یہ احکامات جو ہے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ، امداد بزدار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت یہ سندھ میں امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں سندھ پولیس کی تنخواہوں اور مراعات میں فوری اضافے کا حکم جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے سیف سٹی منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، وفاقی بجٹ میں ٹیکسز اور بجلی کے نرخوں میں ریکارڈ اضافے کے خلاف کاٹن جنرز نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین احسان الحق کہتے ہیں کہ مطالبات کی منظوری تک کاٹن جنرز کپاس کی خرید و فروخت معطل رکھیں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جی کاٹن جنرل سیکٹر پر پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکسز کا نفاذ کیا گیا تھا۔ اس وقت کاٹن جنرل سیکٹر پر 72% GST آیا تھا۔ اب اس بجٹ میں مزید 10% اضافہ کیا گیا ہے۔
جبکہ بجلی کے فکس چارجز میں 2000 روپے پر کلو واٹ آور کا اضافہ کیا گیا، جس سے کوٹن ڈیلرز کو ماہانہ کم از کم 6 لاکھ روپے کا اضافی بلز ادا کرنا پڑیں گے۔ پاکستان کوٹن جینرز ایسوسی ایشن کی جانب سے فیڈرل گورنمنٹ کو متعدد بار یاد دہانی کرائی گئی کہ کوٹن جینرز سیکٹر پر آئی ٹیکسز میں کمی کی جائے، لیکن وفاقی حکومت نے ایسا نہیں کیا، جس پر احتجاجاً PCJ نے گزشتہ روز سکھر میں اپنی ایک ہنگامی جنرل باڈی میٹنگ کا اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ جب تک PCJ کے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے، نہ تو کپاس کی خریداری کی جائے گی اور نہ ہی ٹیکسٹائل ملز کو روئی کی فروخت کی جائے گی۔ کا بات کریں گے شہر قائد کے موسم کی، تو ناظرین شہر قائد میں دن بھر سورج آگ برساتا رہا۔ شہر میں سب سے زیادہ گرمی گلستان جوہر میں پڑی۔ گلستان جوہر میں آج پارہ 43.7 ڈگری پر پہنچ گیا۔ دوسرے نمبر پر ایئرپورٹ کا علاقہ گرم ترین رہا۔ ایئرپورٹ اور اطراف میں درجہ حرارت 42.8 ڈگری ریکارڈ ہوا ہے۔ موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں آج موسم کافی گرم رہا۔ شہر میں سب سے زیادہ گرمی گلستان جوہر میں پڑی ہے۔ جی ہاں، آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرے ہیں۔ گلستان جوہر میں آج پارہ 43.7 ڈگری پر پہنچ گیا۔ دوسرے نمبر پر ایئرپورٹ کا علاقہ گرم ترین رہا، اور اس پر بات کر لیں گے عائمہ خان سے۔ ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا عائمہ۔ جی بالکل، دیکھیں کراچی میں جو ہے وہ رواں سال کا آج گرم ترین دن جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے، جس میں پارہ جو ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ شہر میں سب سے زیادہ گرمی جو آج ریکارڈ کی گئی ہے وہ گلستان جوہر میں ریکارڈ کی گئی۔ گلستان جوہر میں پارہ جو ہے وہ 43.7 ڈگری جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو ایئرپورٹ کا علاقہ ہے وہ گرم ترین رہا ہے۔ ایئرپورٹ کے علاقے میں جو درجہ حرارت ہے وہ 42.8 ڈگری ریکارڈ ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر شارع فیصل میں جو ہے وہ گرم ترین رہا ہے۔ شارع فیصل پر جو درجہ حرارت ہے وہ 40.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے، جبکہ سب سے کم گرمی آج جو ہے وہ بن قاسم ٹاؤن میں پڑی ہے۔ بن قاسم ٹاؤن جو ہے وہ شہر کا مضافاتی علاقہ ہے، وہاں پہ زیادہ درخت ہونے کی وجہ سے جو درجہ حرارت ہے اس میں جو ہے وہ نمایاں کمی جو ہے دیکھنے میں آئی ہے دیگر علاقوں کے مقابلے میں۔ بن قاسم ٹاؤن میں جو درجہ حرارت ہے وہ 36.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ عائمہ آپ کا۔ کراچی میں شدید گرمی کے باعث دل کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہسپتال میں ایک ہفتے کے دوران دل کے امراض میں مبتلا 100 سے زائد افراد ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو کر رپورٹ ہوئے ہیں۔ 2 افراد ہیٹ اسٹروک کی علامات کے ساتھ انتقال کر گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ابراہیم رنج سے۔ جی دیکھیں، بالکل شہر قائد میں گرمی برقرار ہے اور دل کے مریضوں کی تعداد میں بھی کئی گنا زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں فیڈرل بی ایریا کے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز اسپتال میں، جو کہ دل کی بیماریوں کا شہر قائد میں دوسرا بڑا اسپتال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایمرجنسی کے انچارج ہیں ڈاکٹر عاصم سلیم۔ ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ ڈاکٹر عاصم، آپ بتائیے گا کہ دل کے مریضوں میں کتنا فیصد اضافہ ہوا اس گرمی میں؟ دیکھیں، اس میں جو ریشو زیادہ ہے نا وہ بزرگوں کا زیادہ ہے، جو اولڈ ایج پیشنٹس ہیں، اسپیشلی وہ مریض جن میں دل کے پٹھے بہت کمزور ہیں۔ یہ ایک دل کی ڈیزیز ہوتی ہے جو ہارٹ اٹیک کے بعد بھی ہوتی ہے، اور سرٹن ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کارڈیومایوپیتھی کہتے ہیں۔ اچھا، ایسے مریض گرمی بہت کم ٹالریٹ کرتے ہیں۔ کہیں اسٹیبل ڈیزیز بھی ہے، اسٹیبل ڈیزیز کے جو پیشنٹس ہیں وہ ٹالریٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں مشورہ یہی ہے کہ اگر ان کو علامات ہارٹ فیلئر کے نہیں ہیں تو پھر میکسیمائز اگر پانی بھی استعمال کریں، گھروں کے اندر رہیں، اور اس ٹائم انفارچونیٹلی شہر میں جو بجلی جانے کا فقدان بہت زیادہ بڑھ گیا، یہ بھی ایک پریسپیٹیٹنگ فیکٹر ہے۔ ہمارے پاس جو یہاں پہ کیسز ہیں جن کو ہم طبی امداد دے رہے ہیں وہ 100 سے لگ بھگ زیادہ ہیں ابھی پچھلے ایک ہفتے کے اندر، اور ہم نے ان کو طبی امداد دے کے ایسے سیٹ اپس میں بھیجا ہے جہاں پہ پراپرلی ایک ہیٹ اسٹروک مینجمنٹ ہوتی ہے۔ 100 سے زائد ایک ہفتے کے دوران یہاں پہ کنفرم کیسز ہیٹ اسٹروک کے آ چکے ہیں دل کے اسپتال میں، جن کو تمام تر سہولت فراہم کر کے ان کو گھروں کو روانہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عوام کو بھی چاہیے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، اس موسم میں غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں، اگر نکلنا بھی ہو تو احتیاطی تدابیر لازمی اپنائیں۔ جی، کراچی ایک بار پھر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ گیا۔ 2 روز تک شہر میں جزوی ہیٹ ویو رہے گی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق آج پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھنے کا امکان ہے۔ ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جو گزشتہ دن سے کراچی میں بہت تیز گرمی شروع ہوئی ہے، 40+ چلا گیا تھا ٹیمپریچر کل بھی، اور آج بھی امکان یہ ہے کہ 41 یا ہو سکتا ہے 42 تک بھی چلا جائے، 41 کو کراس کر سکتا ہے آج۔ اور اسی طرح سے آنے والے کل جو ہے 3 دن کا دورانیہ اس کا ہے، اسے ہم جزوی ہیٹ ویو کہہ سکتے ہیں کراچی کے لیے۔
और उसकी वजह ये है कि जो सुबह के औकात में सुबह से लेकर दिन के 1 या 2 बजे तक कम से कम गुज़श्ता कल भी हुआ था और आज भी आने वाले कल में भी यही सिचुएशन रहने का इम्कान है कि कराची की विंड चेंज हो जाती है, जनूब मगरबी डायरेक्शन के बजाय शुमाल मगरब से डायरेक्शन हो जाती है उसकी, तो उसके बायस टेम्परेचर ज़्यादा शूट कर रहा है। तो उसमें 1 या 2 दिन मज़ीद हैं, उसमें उसके बाद में परसों या तरसों से फिर ग्रेजुअली इसमें कमी आएगी, यानी 37-38 तो फिर भी रहेगा। नमी भी चूँकि खांसी होती है 50% से ऊपर चल रही होती है, तो गर्म मरतूब मौसम तो रहेगा, लेकिन जो बहुत शिद्दत की गर्मी है यानी 40+ में जा रहा है टेम्परेचर, इसमें कुछ परसों से फिर कमी आने का इम्कान है। देखिए, जो आपने फोरकास्ट देखी होगी, जो पूरे सीज़न की फोरकास्ट PMD ने इशू की है, उसमें वेबसाइट पर भी मौजूद है, उसके मुताबिक तो पूरे मुल्क भर में मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं इस दफ़ा मानसून में, और कुछ एरियाज़ में मामूल से ज़्यादा होने का ज़्यादा चांसेस हैं। उसमें कराची भी शामिल है और दूसरे जो सदर सिंध के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, सुजावल, ठट्ठा, वही, मीरपुर ख़ास और थपारकर, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होने के ज़्यादा चांसेस हैं बनस्बत दूसरे अजला के। तो इम्कान ये है कि जो इसके जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशें बाकायदा सिंध में शुरू हो सकती हैं। नॉर्थ में यानी पंजाब साइड पे हो सकता है कि 30 जून से या 1 जुलाई से शुरू और फिर ग्रेजुअली इस तरह से नीचे हो सकता है कि 2 या 3 जुलाई से थरपारकर ओवरकोट वगैरह साइड पे पहली बारिश हो सकती है, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली कराची की तरफ और सिंध के दूसरे अजला की तरफ इस तरह से वो वेव बढ़ती हुई आएगी। तो जुलाई का पहला हफ्ता हम कह सकते हैं। यहाँ बात करेंगे सिंध गवर्नमेंट हस्पताल लियाकत आबाद की इमारत के मुख्तलिफ हिस्से खस्ता हाली का शिकार हैं। जगह जगह टूट फूट से तिबी और गैर तिबी अमले के साथ मरीज और तीमारदार भी शदीद परेशान नजर आते हैं। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखिए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकत आबाद की इमारत जगह जगह से टूट फूट का शिकार, अंदरूनी व बैरूनी छत भी खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगी। मरीजों के तीमारदार खौफजदा हो गए। मलबा वगैरह गिर सकता है, इसलिए हम खौफ ज़्यादा भी रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बच्चों से कह रहा था कि आप कल से यहाँ आओ, अगर कोई चट्टान गिर गई ऊपर से तो फिर नुकसानदेह है ना। डर लगता है, एकदम बैठे हो नीचे तो एकदम से नीचे छत गिरे तो फिर खौफ तो आएगा ही ना, डर लगेगा, क्योंकि यहाँ सब बच्चे हैं, लेडीज़ है, जेंट्स हैं, आते जाते हैं, तो परेशानी तो होगी, तो ये मुरम्मत होना चाहिए। दूसरी जानिब अस्पताल के इंतजामी अफसर का कहना है महकमा वर्क्स को लेटर लिख दिया है, जल्द इमारत पर तरक्याती काम शुरू हो जाएगा। MS साहब ने जो है वो इस पे जो है वर्क्स डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया है, और जो है जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आएगी तो इंशाल्लाह जो है इमारत के ऊपर जो भी मसले मसाइल हैं उनके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, और जब अमल दरामद हो जाएगा चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हो जाएंगी, तो मरीज़ों को भी जो है वो खतरात जो लाहक है चीज़ों से वो भी इंशाल्लाह मामला सारे बेहतर हो जाएंगे। दूसरी जानिब अस्पताल के तिबी अमले ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तरक्याती काम कराया जाए ताकि वो काम के दौरान जहनी परेशानी का शिकार न हो। कैमरामैन के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। स्विस सदर गैस कंपनी के दावे धरे के धरे रह गए। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद गैस पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल ना हो सका। स्विस सदर की जानिब से अजीमपुरा से जाम सादिक पुल तक 20 इंच कतर गैस पाइपलाइन 9 किलोमीटर तक बिछाई जानी थी, जबकि गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन मंसूबे का हुक्म 2 अहम मकामात पर किया जाना है। पाइपलाइन बिछाने के काम के बायस कोरंगी के तमाम सेक्टर्स में ताहाल गैस की फ्राहमी मुअत्तल है। मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूद आबाद और DHA में भी गैस गायब है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। स्विस सदरन गैस कंपनी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल ना हो सका। स्विस सदरन की जानिब से अजीमपुरा से जाम सादिक पुल तक 20 इंच कतर गैस पाइपलाइन 9 किलोमीटर तक बिछाई जानी है। शहरियों को गैस की वजह से परेशानी का सामना है। कराची में पोश और कमर्शियल इलाके भी गैस बंदिश की जद में हैं। कमर्शियल सार्फिन के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। तारिक रोड कमर्शियल मार्केट में होटलों की सरगर्मियां गैस की बंदिश और होशबा बबलों से मुतासिर होने लगी। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची के पौश और कमर्शियल इलाके भी गैस बंदिश की जर्द में। तारिक रोड पे होटल मालकान के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। होटल मालकान के मुताबिक गैस की किल्लत के सबब LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और सिलेंडर की फिलिंग का माहाना खर्चा लाखों रुपए है। गैस की किल्लत के बावजूद 5 लाख रुपए से ज्यादा बिल आते हैं। क्योंकि गैस आ नहीं रही थी, अगर आ भी रही है तो 1-2 टाइम आ रहे,
बाकी जो है हमारा काम सिलेंडर पे चल रहा है। रोटियां भी सिलेंडर पे चल रही है, रोटियां भी जो है ना तंदूर भी सिलेंडर पे, इस तरीके से पराठे के भी अंदर सालन वगैरह भी, ये सब कुछ जो है सिलेंडर पे चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये मेरे हाथ में आप देख सकते हो बंद जो है ना 1 2 ये देख सकते हो आप 5,33,000 ये बिल आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें तो होटल बंद करना पड़ेगा। खाने की तैयारी का अमल भी गैस की बंदिश की वजह से इम्तिहान बन जाता है। और गैस बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर, बिल्कुल इतने से चूल्हे भी नहीं चल रहे, सिर्फ मीटर लगे बराई नाम बस। हाँ, और रोटी तैयार करने में कितनी मुश्किल? बहुत बड़ा मुश्किल आती है, बहुत बड़ा मुश्किल। हर तरफ से जो मजदूर तबका है ना, हर तरफ से बस पीस रहे। गैस भी नहीं आ रहा, सिलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते तो आगे से बातें भी सुनने पड़ते, वही गैस ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कमर्शियल सार्फिन बिलखुसूस होटल मालकान का हुकूमत से मुतालबा है गैस की कीमतों में कमी के साथ फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गर्म मौसम में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। मुस्तस्ना इलाके भी लोड शेडिंग की लपेट में आ गए। रुकन असम्बली रुखसाना शाह कहती हैं कि बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को नफसियाती मरीज बना दिया। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। रोशनियों के शहर में बिजली की लोड शेडिंग थम न सकी। मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 16 घंटों तक जा पहुंचा। सख्त गर्मी में शहरियों का पारा हाई हो गया। लसबेला, कोरंगी, औरंगी टाउन, मेमनगोट, कायदाबाद, सुरजानी टाउन, सच्चल, लांडी और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली की आंख मचोली से मुतासिर हैं, जबकि फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, सफूरा और गुलशन मेमार समेत मुख्तलिफ मुस्तस्ना इलाके भी लोड शेडिंग की जद में आ गए। सितम जरीफी तो ये है कि इलेक्ट्रिक शिकायती मराकज पर शिकायत के बावजूद रजिस्टर्ड शिकायती नंबर देने से गुरेजा है। शिकायती मराकज पर सार्फिन को काम जारी है का रिवायती जुमला कह दिया जाता है। वाटर बोर्ड का मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद 3 रोज बाद जब पानी आना शुरू हुआ तो बिजली बंदिश का मसला संगीन हो गया। शहरियों का कहना है कि बिजली के आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। बिजली गायब होने से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह जाते हैं। लोड शेडिंग से पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल दरपेश होते हैं। हमारे टोटल तकरीबन सुबह में 2-3 दफ़ा जाती है और फिर रात में भी 5-6 दफ़ा लोड शेडिंग है पूरे दिन में, और 3-3 घंटे तकरीबन लोड शेडिंग है। तो 3-3 घंटे में लोड शेडिंग है तो फिर आदमी कहाँ अपने कारोबार काम काज कैसे करेगा? बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी हो रही है घर वालों को, बच्चों को भी, और हमें सब मल्ले वाले को परेशानी हो रही है, सब परेशान इसकी वजह से। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के 70% इलाकों में बिजली की फरहमी का दावा किया जा रहा है। तर्जुमान का कहना है शहर में 10 घंटों की लोड शेडिंग उन इलाकों में की जा रही है जहां बिजली चोरी होती है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाजिमाबाद टाउन ने माली साल 2024-25 के लिए ड्राफ्ट बजट तैयार कर लिया जो टैक्स फ्री होगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। नाज़िमाबाद टाउन के अगले माली साल का बजट 26 जून को पेश होगा, जिसका कुल हजम 2 अरब 28 करोड़ रुपए होगा। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ज़हीर अहमद खान के मुताबिक तरक्याती मद में 54 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कि हमारा नाज़िमाबाद का 2 अरब 28 करोड़ का बजट है, जिसके अंदर बचत हमारी 1,40,000 रुपए है। इसके साथ साथ तरक्याती जो हमने रखा है 54 करोड़ रुपए रखे, गैर तरक्याती 1 अरब 74 करोड़ रखे। नाज़िमाबाद टाउन के टैक्स फ्री बजट में सबसे ज्यादा फोकस शोबा तालीम पर किया गया है, जबकि ओन रिसोर्स की बेहतरी का अज़म किया गया है। देखिए, इसके अंदर हमने पहले जो तरजीह रखी, इसके अंदर एजुकेशन 25% हमारे यानी पूरी कौंसल अरकान कमेटी और सबकी मुशावरत के साथ हमने एजुकेशन बहुत रखा है अहमियत के 25% इसके ऊपर एजुकेशन भी किया जाए। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि हमारे अपने ज़राए 57 करोड़ है, तो इंशाल्लाह वो भी इस पे हैं। एक अच्छा बजट पेश किया जाएगा नाज़िमाबाद की आवाम के लिए, उनको यहाँ पर फैसिलिटीज दी जाएगी और हमें रेवेन्यू का भी इंशाल्लाह जो हमारे ज़राए हैं उनसे भी एक अच्छी उम्मीद। नाज़िमाबाद टाउन की आमदनी का बड़ा इन्हिसार सिंध हुकूमत से मिलने वाली OZT ग्रांट पर है, जो आइंदा माली साल में 7.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 9 करोड़ रुपए माहाना तक जाने की तवक्का है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
शहर के अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का मिशन मेयर कराची कहते हैं अब्बासी शहीद और सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल में इलाज की सहूलियात को बेहतर किया गया है। अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने की जानिब एक और कदम। मेयर कराची ने गिजरी मैटरनिटी होम में डेंटल यूनिट और नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोले कि बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल और सरफराज रफीकी शहीद अस्पताल में सहूलियात बेहतर की गई हैं। गिजरी मैटरनिटी होम में अल्ट्रासाउंड और डिलीवरी की सहूलियात इंतहाई कम कीमतों में दस्तयाब हैं। यहाँ पर ओपीडी होती है 20 रुपए में, अल्ट्रासाउंड होता है 150 रुपए में, नॉर्मल डिलीवरी है 2000 रुपए, सी सेक्शन है 5000 रुपए। और सी सेक्शन 5000 रुपए इसलिए रखा है कि उसमें आपको एनेस्थेटिस्ट रिक्वायर्ड होता है और बदकिस्मती के साथ इतने सालों में वो एनेस्थेटिस्ट यहाँ पर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयत के फुकदान का बहरान है। तलबा डिग्री से जान छुड़ाएं, तालीम की तरफ आएं। PCSIR में मुनक़िदा तकरीब के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर तालीम और पेशा वराना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PCSIR के ज़ैली इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का दौरा किया। तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में वफाकी वजीर को ब्रीफिंग दी। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर तालीम ने कहा कि हमारे दो पड़ोसी मुल्क जो आबादी में हमसे ज्यादा थे अब टेक्नोलॉजी में आगे हैं। पाकिस्तान में माशी बहरान नहीं। दुनिया में कभी भी मुल्क अकेला और तन्हा तरक्की नहीं करता है। तारीख हमें ये सिखाती है जब करता है तो पूरा खित्ता तरक्की करता है। हमारा खित्ता तरक्की कर रहा है, हमारे पड़ोस में जो दो आबादी के जाइंट्स थे वो अब टेक्नोलॉजी के जाइंट्स हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई माशी बहरान नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। पाकिस्तान में नियतों का बहरान है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि भारत ने 20 बरसों में अपने 25 से 36 करोड़ लोगों को खते गुर्बत से बाहर निकाला। पाकिस्तान के 15 करोड़ नौजवान इनाम भी हैं और इम्तिहान भी हैं। इंडिया ने 20 साल में अपने तकरीबन 25 से 26 करोड़ लोगों को खते गुर्बत से बाहर निकाला। दुनिया हमारा इंतजार नहीं कर रही है, वो तेजी से वक्त दौड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में 15 करोड़ नौजवान हैं। किन नौजवानों को हमें अपनी ताकत बनाना है, अपना खजाना बनाना है, अपनी कुव्वत बनाना है। तकरीब के मुकर्रिरीन ने PCSIR को लाहक मसाइल से शुरका को आगाह किया। वफाकी वजीर ने तकरीब के अख्तिताम पर शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। यहाँ आपको बताएंगे जामिया कराची के शेखुल जामिया के ज़ेर सदारत एडवांस्ड स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें 188 तलबा तलबात को PhD, MPhil, MS और LLM की डिग्रियाँ तफवीज़ कर दी गई। जी हाँ, जामिया कराची के शेख अल जामिया की ज़ेर सदारत एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड का इजलास हुआ। इसी पर तफसीलात जानेंगे ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, जामिया कराची के शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी की ज़ेर सदारत एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 188 तलबा व तालिबात को PhD, MPhil, MS और LLM की डिग्रियाँ तफवीज़ कर दी गई। 52 तलबा व तालिबात को PhD जबकि 125 तलबा व तालिबात को MPhil की डिग्रियाँ तफवीज़ की गई। 2 तलबा को MLM और 8 तलबा को कोर्स वर्क मुकम्मल करने पर MS की डिग्री तफवीज़ की गई, जबकि एक तालिब इल्म को मास्टर ऑफ सर्जरी और एक को DSc की डिग्री जो है वो जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर राशिद। सिंध हुकूमत की जानिब से स्पेशल जुडिशल अलाउंस जारी ना करने का केस चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने दायर दरख्वास्त पर अहम फैसला सुना दिया। अदालती स्टाफ की स्पेशल अलाउंस को मुंजमद करने के सिंध हुकूमत के फैसले को कलअदम करार दिया। तमाम बकाया फंड्स 2 माह के अंदर जारी करने की हिदायत कर दी हैं। सिंध हाई कोर्ट में सिंधी हुकूमत की जानिब से स्पेशल जुडिशल अलाउंस जारी ना करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने अदालती स्टाफ के स्पेशल अलाउंस को मंजमद करने की सिंध हुकूमत के फैसले को कलअदम करार दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत को तमाम बकाया फंड्स 2 माह के अंदर जारी करने की हिदायत कर दी। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती अमले को स्पेशल जुडिशल अलाउंस जारी करने का हुक्म दे दिया था। दरख्वास्त अली रज़ा मेमन और डॉक्टर खुरम की जानिब से दायर की गई थी। दरख्वास्त अली रज़ा मेमन और डॉक्टर खुरम की जानिब से दायर की गई थी।
शहर कायद में LPG सरकारी कीमत से 50 रुपये फ़ी किलो महंगी फ़रोख्त होने लगी। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन कहते हैं कि ओगरा ने कीमत 234 रुपये 60 पैसे मुकर्रर कर रखी है। हुकूमत और ओगरा इसकी जिम्मेदार, लेकिन आर्टिकल 29 के तहत तमाम तर इख्तियार डीसी के पास है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक ताकतवर माफिया को हाथ नहीं डाला जाएगा, ये ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं रुकेगी और ये रोज रोज के जो ब्लास्ट हो रहे मासूम जाने जा रही है, ये भी नहीं रुकेंगे। गुजरांवाला में गैर मैरिज टेंडर्स की दस्तियाबी अभी भी आम सरेआम चल रही है। आप देखें हैदराबाद वाला वाक़या। दूसरी जो अभी प्राइस की बात है, किसी प्लांट पर सरकारी कीमत दस्तियाब नहीं है। जब तक प्लांटों से सरकारी कीमत दस्तियाब नहीं होगी, मुमकिन ही नहीं है मार्केट में गैस उस कीमत पर सेल हो। बात यह है कि दुकानदार अपने घर में गैस पैदा नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में गैस नहीं पैदा, जहाँ से गैस चलती है सरकारी कीमत को वहाँ से इंश्योर करना जरूरी है। प्लांट वालों ने कीमत जो बढ़ाई है, बिला जवाज कीमत में इजाफा किया गया, ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर इजाफा है, ये मुनासिब नहीं है। बात यह कि दुकानदारों डिस्ट्रीब्यूटर की पकड़ दकड़, जुर्माने, दुकानें सील करना, ये मुनासिब अमल नहीं है। इससे आवाम को गैस सस्ती नहीं मिल सकती और ना सेफ्टी हो सकती है। सेफ्टी करने के लिए हमें सबको हमें सर जोड़ना पड़ेगा और हुकूमत और ओगरा को ताकतवर लोगों को हाथ डालना पड़ेगा, फिर मुनासिब की चीज़ें होंगी और बेहतर होगी, फिर मासूम जान बच सकती है, गैर मैरिज सेंटर का खात्मा हो सकता है। सेफ्टी पे इंशाअल्लाह हम हुकूमत जो भी है, हम हुकूमत के ना बिजली, ना पानी, ना ही गैस। कराची वाले जाएं तो जाएं कहाँ। कराची में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली, पानी और गैस की बंदिश के खिलाफ शफीक मोड़ पर एहतजाज। मुजाहिरीन के इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाज के अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। सोहराब गोड़ से शफीक मोड़ जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। नम्रा, हमें अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि बुनियादी सहूलियात का फुकदान बढ़ने लगा है और शहरी जो है अब आपे से बाहर हो चुके हैं और सड़कों पर निकलने लगे हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी जो है वो यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें न्यू कराची और नॉर्थ कराची के लोगों ने जो है वो शिरकत की और एहतजाज के बायस अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो चुकी है और सराबगोड़ से शफीक मोड़ जाने वाली जो सड़क है उस पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक जाम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। जी, गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगी रही। बहुत शुक्रिया नम्रा रियासत। हुकूमत ने बजट में बीमारों को भी ना बख्शा। सर्जिकल और मेडिकल आलात पर 18% GST के नफाज की तैयारी कर ली गई। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का टैक्स से मुस्तस्ना तब्बी आलात पर भी टैक्स लगाने का फैसला। हुकूमत हालिया बजट में तमाम मेडिकल और सर्जिकल आलात पे 18% सेल टैक्स आयद करने के लिए तैयार। सेल्स टैक्स के 6 शेड्यूल के मुताबिक इस्तस्ना में शामिल मेडिकल और सर्जिकल आलात को लिस्ट से खारिज कर दिया गया। दिल के स्टंट, ज़ियाबतीज़ के टेस्ट की स्ट्रेप्स, थैलेसीमिया, कैंसर और डायलिसिस के आलात महंगे होने का खदशा। लकी स्टार पे वाक़े सर्जिकल मार्केट के सदर नासिर खान का कहना है GST के नफाज के बाद कारोबार करना नामुमकिन हो जाएगा। तिब्बी आलात की कीमतों में 20 से 30% इजाफा हो जाएगा। अगर ये GST लग जाता है तो फिर इसके बाद तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्केट उठ सकेगी। व्हील चेयर, वॉकर, शुगर की मशीनें हैं, BP की मशीनें हैं, जो आइटम भी हैं सारे सर्जिकल के आइटम हैं सारे, और ये तकरीबन आपके 20% 30% ये रेट इनके जंप कर जाएंगे। मार्केट में मौजूद खरीदार बोले, दुकानदार कहते हैं आइंदा माह से शुगर टेस्ट की स्ट्रिप मौजूदा कीमत से नहीं मिलेगी। ये छोटी सी एक चीज़ है, ये शुगर की स्ट्रिप्स हैं, इसको मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने बताया कि ये अभी 750 रुपये की है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम लेने के लिए आऊँगा तो 1000 रुपीज़ की हो जाएगी। लाजिम बात है, वो हर आदमी अफोर्ड तो नहीं कर सकता है ना। अब 700 वाली चीज़ जो है वो 1000 में हो जाएगी। अब तनख्वाह पेशा आदमी तो नहीं कर सकता ना। सेल्स टैक्स के नफाज से महदूद वसाइल से चलने वाले खैराती अस्पतालों में गरीबों के इलाज में 30% कमी का खदशा पैदा हो गया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।